I think the family is in the best position to talk about what he was all about, what they have lost, what the nation gained. कुछ लोग ऐसे थे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग ऐसे थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग ऐसे भी थे जो वक्त के सांचे बदल गए. Ladies and gentlemen, it is my privilege to introduce to you this session, The Warrior's Legacy, remembering General Bipin Rawat, PVSM, UISM, AVSM, YSM, SM, and VSM. Over to you, Dipan. Thank you so much. We are here to talk about a person, and especially if I feel that what was my connection with General Bipin Rawat ji, whatever I'll speak, it would be just a person, just an outsider's lens, and the two family members are with us. It was just a coincidence that on 9th November 2021, I met General Rawat in Raj Bhavan during the Founders' Day of Uttarakhand. And when I introduced myself to him, he just, with his smile, he says how good it is that a woman Vice Chancellor in Uttarakhand, a woman is heading an institution. And he encouraged me a lot, and at the same time I told him that there is another woman Vice Chancellor in HNB Garhwal University where he had to go to for the convocation address on I think 1st of December 2021. And then he has asked me about the status, about the progress of the institutions and the universities. So that was the conversation, and after that incident left us shocked. On March 16, 2022, we organized the first lecture in the memory of General Bipin Rawat, and Shivendra ji was with us that day, and Lieutenant General Negi ji sitting in front of me. We all gathered and we, what we could do. And I feel he was a person, that day also a lot of discussions going on. And what is Doon University's part in it is very important in the way that we decided to open a school's name dedicated to General Bipin Rawat, especially General Bipin Rawat School of Social Sciences. And I should just extend my heartfelt thanks to माता मंगला जी कि उन्होंने इसके लिए ये बिल्डिंग बहुत पहले तैयार हो जाती, but because you are here in the premises of Doon University and you can see that we have very limited space. We have only 53 acres of land in Doon University. So the government order is there that you will only make vertical buildings and not like this. So that very map which we already made in the memory of General Bipin Rawat and showed it to government. They say that you just devote 2 blocks of social sciences building in some vertical building. So we decided we have already a library building. उसके ऊपर के जो 2 ब्लॉक होंगे, और माता मंगला जी को इसलिए धन्यवाद इस विशेष ओकेजन में देना चाहती हूँ कि he promised to give 14 crores rupees for that. Later on, what we will do, it is not only that we will give the name to this block and just say that it is a social science block, but we will align his strategies, his mindset, his way of working, और उनकी जो एक स्पेशली एजुकेशन, और वो भी वुमन के लिए जो इतनी छोटी सी बात मेरी हुई, उन्होंने कहा कि हम क्या आपके पास कोई प्लान है गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन का, स्पेशली रिमोट हिल्स में हम लोग क्या कर सकते हैं. तो उन सबको देखते हुए हम उस रिसर्च को कैसे अलाइन कर सकते हैं और उनकी मेमोरी को, बिकॉज इट इज़ ओनली द वे इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही उन वीर जवानों को हम याद कर सकते हैं
और उनके बारे में बात कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एसेंशियल है। और जो यहाँ पे ये शौर्य सागा हुआ, मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। यस्टरडे ऑल्सो आई वांटेड टू ज्वाइन और कुछ सेशन सुनना चाहती थी, एंड रूबी सेशन वाज आल्सो देयर। एंड मेरा केवल आर्मी से इतना नाता है कि मैं लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ और फेयरवेल टू आर्म्स पढ़ा है हेमिंगवे का, और वॉर लिटरेचर और कैसे टू वर्ल्ड वॉर ने पूरी दुनिया के माइंडसेट एंड स्पेशली अमेरिका में एक नियलिस्टिक मूवमेंट ही हो गया कि वॉर में सब ब्लड शेड होता है, सो लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, एंड लॉट ऑफ ग्रेट राइटर्स कमिटेड सुसाइड और फिर सुसाइडल लिटरेचर चल पड़ा। और लियो टॉलस्टॉय का वॉर एंड पीस में क्या डेफिनेशन है, और आर्म्स एंड द मैन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है, उसमें जो एक ग्लोरिफिकेशन ऑफ आर्मी है उसको कैसे डिकंस्ट्रक्ट किया गया है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जैसे अभी जो हमारी बेटियां थी नेहा, और उन्होंने बताया कि एक ऐसी स्टोरी है जब आप इनसाइडर्स के मुंह से सुनते हैं, जो लोग उस फैमिली के हैं, जो उनकी गाथाएं, जो उनके इमोशंस हैं, जो उनके वो मोमेंट्स हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो आपको एक बिल्कुल अलग सी पिक्चर आती है। और मेरे लिए आर्मी की फैमिली और आर्मी पर्सन, डिफेंस पर्सन एंटायरली एक डिफरेंट मेटल के बने होते हैं, दैट वी नो वेरी वेल। एक और दून यूनिवर्सिटी जो करने जा रही है, हमारे यहाँ मैंड्रिड की अभी बात आई थी, तो हमारे यहाँ चाइनीज़ स्टडीज़ डिपार्टमेंट है, जैपनीज़ है, फ्रेंच और जर्मन है, और स्पेनिश डिपार्टमेंट है। और ये स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें डिफेंस के लोगों से बार बार बात होती है, और बहुत तरीके से जितना हम कर सकते हैं विद द लिमिटेड रिसोर्सेज स्पेशली ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स, वो लिमिटेड रिसोर्सेज में दून यूनिवर्सिटी डिफेंस को अपनी सेवाएं देती है। और नेटिव फैकल्टी भी हमारे यहाँ होती है, हर नेशन की एक नेटिव फैकल्टी है जो एम्बेसी हमको देती है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट, यानी धीरे धीरे हम एक चॉइस बनते जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स JNU ना जाके हमको विकल्प के रूप में देखने लगे हैं, और हमारी 5 भाषाएं बहुत अच्छी चलती हैं। जनरल जो हमारे चांसलर हैं राज्यपाल जी, वो ये चाहते हैं कि हम इसको स्ट्रांगली और सेंटर फॉर चाइनीज़ स्टडीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि इसको डिफेंस को बहुत ज़रूरत है। पौड़ी ज़िले में हम 10+2 के लगभग 400 स्टूडेंट्स को इस समय DM पौड़ी के माध्यम से चाइनीज़ भाषा सिखा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन हैट्स ऑफ टू ईच एंड एवरी वन ऑफ द आर्मी पर्सोनल। जैसा लाइफ है, और जैसा अभी रूबी ने भी बताया, कि बस मुझे ये 2 लाइन याद आती हैं कि उधर बादलों को जिद है बिजलियां यहीं गिराने की, और इधर हमने भी ये ठानी है कि आशियां यहीं बसाने की। इस कमिटमेंट के साथ पूरी फोर्स काम करती है, स्ट्रगल में काम करती है, और बहुत ही टफ तरीके से काम करती है। लेकिन उसके बाद और जो पूरा डेवलपमेंट आपने स्ट्रैटेजिक बनाया, और ये बेटर होगा कि हम जनरल बिपिन रावत, ही वॉज अ सन ऑफ सॉइल एंड ट्रू सन ऑफ मदर इंडिया, उस व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व और उसका जो फर्स्ट जो वो अपने डिफेंस स्टाफ के जनरल रहे, उनको बार बार याद किए जाने की, जैसे आपने बताया NCC को इंस्पायर करने की ज़रूरत है, यंग माइंड्स को इंस्पायर करने की ज़रूरत है। तो एज एन इंस्टीट्यूशंस वी आर थिंकिंग लॉट ऑफ थिंग्स, कि हम नॉट ओनली इन द मेमोरी ऑफ द ग्रेट सन ऑफ सॉइल जनरल बिपिन रावत, लेकिन हम कैसे बच्चों के दिमाग में ये बात जान सकते हैं। और अभी इससे पहले वाले के पहला जो सेशन था, उसमें बहुत अच्छी बात कही गई कि हम जहाँ भी हों, जो भी काम हमें दिया जाए, उसे हम कमिटमेंट के साथ करें, और ये कमिटमेंट, ये डिसिप्लिन, ये डेडिकेशन हमको इंडियन आर्मी से मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड थैंक यू टू द ऑर्गेनाइजर फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ग्रेट थिंग। नाउ आई जस्ट आस्क दैट कि आपका जो एक, आप कैसे जानते थे, बस हम यही समझ सकते हैं कि क्या वो पर्सनालिटी थी, क्या वो जुनून था हर चीज को करने का, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी। उनसे हमारा नाता 16 मार्च 1958 से हुआ, जब वो देहरादून मिलिट्री हॉस्पिटल में पैदा हुआ।
उसके बाद 6 महीने का जब वो था, 6 महीने का जब वो थे, तो उनको हमारे नेटिव प्लेस कॉल्ड धनारी, विच इज़ इन अर्शवाइल टिहरी स्टेट, अभी तो उत्तरकाशी में है, उनको वहाँ लाया गया। तो उनके आने की जो खुशी पूरे इलाके में हुई, तो और जिस तरीके से उस बच्चे को हमारे लोगों ने, और हम तो अपने हमारे पुजारी लोग हैं उन पे बड़ा वो रखते हैं, उनका ये कहना था कि ये बच्चा होनहार होगा, और बड़ी खुशियाँ मनाई गई। और उसके बाद फिर वो देहरादून में ही रहे, क्योंकि जनरल रावत उनके जो पिताजी थे वो फौज में थे उस टाइम, पोस्टेड थे देहरादून में, एंड यहीं बच्चों की रहना सहना हुआ। हम लोगों का यहाँ पे घर था 14 न्यू रोड में देहरादून में। एंड फिर जैसे आप जानते हैं कि मिलिट्री ऑफिसर को सभी जगह जाना पड़ता, तो जनरल रावत काफ़ी इलाके में जैसे कि फॉरवर्ड एरियाज़ में भी रहे, बाहर भी रहे, तो बच्चों को उन्होंने देहरादून में इनिशियली रखा, और फिर ये बच्चे यहाँ देहरादून में पढ़े। उसके बाद ये जनरल बिपिन रावत सेंट जोसेफ एकेडमी में, फिर कैमरन हॉल में, और उसके बाद सेंट एडवर्ड शिमला में पढ़े। मेरा ये कहने को वाई आई हैव गिवन दिस स्टोरी इज कि ये जो सारा पीरियड था, हम भी यहीं देहरादून में थे। हमारा एक जॉइंट परिवार है, था और अभी भी है, और हम बड़े नाज से कहते हैं कि आजकल जॉइंट परिवार का रहना इतना आसान नहीं है जितना कि हम अभी तक हमारा परिवार है। तो ये बच्चे हमारे परिवार में रहे। ये शिवेंद्र सिंह उनसे 4 साल छोटे हैं। तो ये बच्चा, जब भी हमने उसको देखते थे, इसके आते बचपन से ही, एक तो ये बहुत ही ओबीडिएंट था, वेरी डिसिप्लिन, और बहुत कहने मानने वाला, वेरी सॉफ्ट स्पोकन। हमें कभी सोचा नहीं था कि ये आर्मी में आएंगे, लेकिन मुझे याद है जब ये सेंट एडवर्ड से शिमला से इन्होंने पास किया, उस टाइम ये एनडीए के लिए अपेयर किया और ये एनडीए में निकल गए। हम भी उस टाइम आर्मी में थे, तो हम छुट्टियां मनाने डलहौजी में गए थे, क्योंकि उस टाइम उनके जो फादर ब्रिगेडियर लक्ष्मण सिंह रावत, वो वहाँ पे ब्रिगेड कमांडर थे। तो हम छुट्टियां मनाने चले गए, मैं पोस्टेड था ग्वालियर में। तो इनको भेजा गया मेरे को रिसीव करने के लिए पठानकोट। जब ये पठानकोट में, और ये बच्चा इतना शॉक था बचपन से ही, इसके मुंह पे हाथ रखो तो दाग पड़ जाए। लेकिन जब मैं उतर रहा था ट्रेन से, तो इसने पाँव छुए और कहने लगा कि आपको खुशखबरी सुनाऊं, मैं एनडीए में निकल गया। मैंने कहा माय गॉड। हम इसका एक्चुअली हम बचपन में बनी नाम रखा हुआ था, बनी। मैंने कहा बनी, और तुम आर्मी में जाएगा? बड़ा वहाँ तो बड़ा टफ काम है भाई, क्योंकि ही वाज वेरी डिटरमिन्ड चाइल्ड, वेरी डिटरमिन्ड। यह है कि कुछ कह दो तो ये ब्रह्म रेखा समझ लीजिए कि वो उसको फॉलो करते थे। तो एनीवे हम देख तो गया था, वैसे इनका मेडिकल में भी हो गया था। तो जब हम डलहौजी पहुँचे तो हमने अपनी सिस्टर और ब्रदर लॉ से बात की कि हमने कहा बनी एनडीए जा रहा है? कहते हाँ, क्यों हो गया? मैंने कहा बहुत टफ है वहाँ तो इनकी मदर ने कहा कि फिक्र मत, ये सब करेगा, पढ़ाई में होशियार, बहुत होशियार। एंड एनीवे फिर हमें भी बड़ी खुशी हुई, और उसके बाद तो हिस्ट्री है, एनडीए में आए, अच्छा किया वहाँ पे। आईएमए में आए, तो आईएमए में तो आप सोर्ड ऑफ ऑनर थे, पास आउट हुए। जब हमें खबर मिली, मैं श्रीनगर में पोस्टेड था, और जब खबर मिली कि विपिन को सोर्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है, तो सोर्ड ऑफ ऑनर मिलना आज इतना आसान नहीं है। द कैडेट को हर चीज़ में माहिर होना पड़ता है, एजुकेशनली भी, फिजिकल फिटनेस में भी, और जनरल ऑल अराउंड। वो ही वॉज वेरी गुड इन एवरीथिंग। तो हम आए, हमने कहा इसकी पासिंग आउट तो हम जरूर जाएंगे। आए, इसकी पासिंग आउट हुई उनकी। इसके बाद जब कहीं भी गया, पोस्टिंग हुई इसके अपने फादर की बटालियन में 511 गया, जनरल
रावत उनके जो फादर थे उन्होंने 511 GR कमांड की थी, ये भी 511 GR में गए। वहाँ पर भी जब हम इनके बारे में पूछते रहते थे तो सब कहते थे कि ही विल डू वेरी वेल, ये होनहार है। एंड होनहार ये था क्योंकि ये बड़ा डिसिप्लिन थे और बहुत ही रिस्पेक्ट देता था हमें राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। ये जनरल भी हुआ, हमें घर में परिवार में इसने महसूस नहीं होने दिया कि ये इतना बड़ा अफसर बन गया। बट डिटर्मिनेशन एक ऐसी चीज़ हुई कि एनडीए में ये जब अपने 3rd टर्म में थे तो स्विमिंग पूल में थोड़ा हिचकिचा गए जंप करने में, ये रेलीगेट हो गए थे, लेकिन ये डिफीट को कभी एक्सेप्ट नहीं करता था। ये छुट्टी आया, छुट्टी में इसने स्विमिंग प्रैक्टिस की, दोबारा वापस गया, अपना टेस्ट पास किया। मतलब कहने का मतलब ये था कि वो घबराया नहीं। इसका एक इंसिडेंट जो IMA का जो मुझे पता लगा उस टाइम पे, क्योंकि मेरे फ्रेंड जो थे इसके इंस्ट्रक्टर थे TS जनरल बर्तवाल, दैट टाइम कर्नल कैप्टन बर्तवाल। इसका बॉक्सिंग रिंग में जिस दिन इनका फाइनल हो रहा था एंड जिस तरीके से इनका अपोनेंट इनको बॉक्स कर रहा था, किसी को उम्मीद नहीं हुई ऑडियंस में कि ये जीतेगा, बट he came back and he fought well and he won. So that was his quality. शिवेंद्र जी, उस दिन भी आपसे बहुत ही, वो तो बहुत ही हमारे लिए इमोशनल क्षण था कि 3 महीने बाद हम श्रद्धांजलि दे रहे थे दून विश्वविद्यालय में जनरल विपिन रावत जी को, और आपने हम सबको उस दिन एकदम भावुक कर दिया था। आपकी जनरेशन और आपकी जनरेशन, क्योंकि विपिन रावत जी की ही जनरेशन है और आप 4 साल छोटे, जैसा परमार साहब ने बताया, आप कैसे देखते हैं विपिन रावत जी को? पहले तो जनरल रावत, विपिन रावत के जो फादर थे जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, उन्हीं की वजह से मेरी मदर की और फादर की शादी हुई थी। वो IMA में पोस्टेड थे 58-59 में, हमारे फादर RIMC में पोस्टेड थे। तो वो ही, क्योंकि हमारी मदर की बड़ी सिस्टर हैं जनरल रावत की मदर, तो शादी वहाँ हुई। फिर हम जब कज़न्स हुए, मेरे से 4 साल बड़ा था, 71 की लड़ाई आई जिसमें कि मेरे फादर 10 गढ़वाल के CO थे, उनकी लड़ाई में डेथ हुई थी 11 दिसंबर 71 को। और जब ये खबर आई थी, सब लोग, जैसे कि अभी कंप्रमान हमारे मामा जी ने बताया कि सब लोग 14 न्यू रोड में रहते थे, तो वहीं पर थे। तो जब ये खबर आई कि उनकी डेथ हो गई है, उस समय टेलीग्राम आते थे, तो जब पता लगा कि डेथ हो गई तो मेरे को याद है विपिन ने आके मेरे को हक किया, 4 साल बड़ा था, और उसने बोला कि हम सब फौज में जाएंगे, हम एक ट्रिब्यूट देंगे मौसा जी को फौज में जाके। और इसका छोटा भाई भी था विजय रावत, जो विपिन के छोटे भाई थे, वो 61 बॉर्न था, मैं 62 था, विपिन 58 था। तो हम तीनों को कहा कि भाई तीनों चलेंगे फौज में, और बहुत मोटिवेट किया। उस उम्र में वो जज्बा था उसमें, क्योंकि 71 में, 58 से आप लगा लीजिए 13 साल का था, पर लेकिन जज्बा क्या था कि फौज में जाएंगे, एक ट्रिब्यूट देंगे उनको, उनकी मार्टरनेस को। ये NDA गए, विपिन NDA में सेलेक्ट हो गए, हमें बड़ा अच्छा लगा, हमारे लिए भी मोटिवेशन था। अब NDA में जब ये थे, तो अब मैं विपिन से बात करूँगा एक भाई की तरीके से और एक फौजी की तरीके से, क्योंकि मैं भी फौज में रहा, वो भी फौज में रहे। पहले भाई की तरीके से बताता हूँ कि NDA में जैसे बताया गया कि वो स्विमिंग में फेल हो गए 6 महीने, वापस आए, मैं RIMC में था, खूब यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते थे, डिटर्मिनेशन था, जज्बा था। वो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि फेल होने से डरना नहीं, ये विपिन से सीखा था मैंने। फेल होने से डरना नहीं, फेल होके वापस आना और खड़ा होना, और फिर प्रूव करना दुनिया को कि मैं फेलियर नहीं था। वो विपिन ने हमको सिखाया, क्योंकि एक टर्म पीछे जाने के बाद भी वो अगली टर्म के साथ सोर्ड ऑफ ऑनर लेके पास आउट हुआ, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब जब फौज में वो गया 511 GR में, जहाँ पर कि उनके फादर सीनियर जनरल रावत भी थे। अब मैं भी 10 गढ़वाल मैंने भी ज्वाइन करी, बाद में जो
मेरे फादर ने जिसमें जान दी। हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है जब हम अपने फादर की पलटन में आते हैं। तो विपिन ने मेरे को उस समय सिखाया, क्योंकि वो तो पहले ही आगे चल रहा था। तो मैंने बोला विपिन क्या? कहता है यार देखो, मेरे को जब मैं पलटन में आया लोग बोलते हैं लक्ष्मण सिंह रावत का लड़का है। कह रहा मेरे को ये प्रूव करना था कि नहीं, मैं विपिन रावत हूं, मेरे फादर लक्ष्मण सिंह रावत हैं। और इसके लिए उसने इतनी मेहनत करी कि अपने कोर्सेज में सारी पलटन के साथ नाम कमाया इतना कि 2 साल में लोगों ने कहा कि हाँ विपिन रावत साहब हैं, इनके फादर भी वो थे। तो ये डिलेमा हर अफसर को आता है, जबकि वो सेकेंड जनरेशन वाला होता है। इनसे सबक सीखकर मैंने भी जब पलटन ज्वाइन करी, मैंने भी उसी तरीके से अपने को करने को कोशिश करी और आगे बढ़ता गया विपिन। हम इसको देखते गए। मेरा इसके साथ फौज में ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन एक बार मैं RIC में पोस्टेड था, ये शाम को आए मेरे पास। तो सीनियर थे, बड़े अच्छा कर रहे थे, MO में थे पोस्टेड। इनके साथ एक राकेश शर्मा हैं, जनरल राकेश शर्मा, वो भी बड़े अच्छे कर रहे थे। दोनों आए, शाम को बैठे मेरे पास, तो बोलते हैं ड्रिंक नहीं पिलाएगा? मैंने कहा आप पीते हो? बिकॉज मैंने कहा ये तो इतने अच्छा कर रहे हैं फौज में, पीते भी हैं। मैंने कहा, कहता पिलाओ। एंड देन वी ड्रैंक होल नाइट। तो ही वॉज अ पर्सनैलिटी, वो 360 डिग्रीज, वो 360 डिग्री वाला बंदा था। हर चीज में उसका पूरे दिल से काम करता था। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। जब मैं दीमापुर में एक कोर कमांडर थे, मैं घर पे था इनके, जब इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था पहली बार। ये जा रहे थे अरुणाचल प्रदेश, खबर मिली कि हेप्टर क्रैश हो गया। तो मैं भी भागा, ADC ने मेरे को फ़ोन किया कि सर वो क्रैश हो गया जनरल साहब का हेप्टर। तो मैं बाहर भागा, इतने में मैं निकल ही रहा था, इतने में जनरल रावत आए, उनकी गाड़ी आई, कारवान आया, वो उतरे, ड्रेस फटी हुई थी, सीधा अंदर गए। पहले उन्होंने जाकर मंदिर में हाथ जोड़े और फिर उनके फादर सीनियर जनरल रावत वहीं पर ही थे, उनके जाके पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। तो ये मैंने उनमें देखा कि इस उम्र में, इस रैंक में भी उन्होंने हर समय अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करी। वो एक इतने आदर्शवादी थे, रोज अपने फादर के पैर छूते थे उस उम्र में जाकर। और इमीडिएटली बोला कि दूसरा हेलीकॉप्टर लाओ, मैं जाऊंगा अभी अरुणाचल प्रदेश, मेरी मीटिंग है। तो मैम ने बोला कि आप रहने दो, खून वून निकल रहा था। नर्सिंग असिस्टेंट को बुलाया, वो पट्टी वट्टी बांधी, लेकिन वो गए, होके आए वापस। तो आदमी में जज्बा था कि मैंने करना है काम, डर नहीं था उनको, अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ था। आप सब बच्चों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने पे सेल्फ बिलीफ रखो। सबसे पहले अपने पे बिलीफ रखो, मैं कर सकता हूँ। अगर आप बिलीफ रखोगे आप कर सकते हो, तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती दुनिया में ना करने से। वो क्वालिटी मैंने जनरल रावत में देखी थी, बहुत ही जबरदस्त सेल्फ बिलीफ था। मैं आपसे, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है और मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज़र तो डिफेंस से नहीं होंगे, कोई हम जैसा सिविलियन होगा जो हमने इसको टाइम नहीं रखा ध्यान में। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, उन्हीं को हम एड्रेस कर रहे हैं। जनरल बिपिन रावत, हाउ ही वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए और उनकी बातों में वो बहुत ही आउटस्पोकन भी थे। और कई बार आपने देखा कि जब जर्नलिस्ट ने उन्हें पूछा, जब भारत अपनी स्ट्रेटेजिक और मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी की ओर बढ़ रहा है, और जैसा हमें पिछले डिस्कशन में भी पता लगा कि हम वर्ल्ड की एक पावरफुल आर्मी है, और चाहे DRDO हो, चाहे अपने जितने डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हों, सब में हमको एक अलग तरीके से देखा जा रहा है। और उसमें ये कहा जाता है कि जनरल बिपिन रावत का बहुत बड़ा योगदान है। उनके पास एक अलग रोड मैप था कि कैसे हम आर्मी को 21st सेंचुरी के इस डेकेड में आगे ले जा सकते हैं। तो वो शिवेन जी कैसे डिफरेंट आप बताएंगे?
देखिए, पहले तो ये जब चीफ बने तो हमने इनको मुबारकबाद दी। तो मैंने बोला आप चीफ बन गए? कह रहे यार मुझे भी नहीं पता था कल तक कि मैं चीफ बनूंगा। तो मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता। कहता मुझे पता ही नहीं था कि मैं चीफ बनने वाला हूँ। कह रहा मैंने, क्योंकि मैं जूनियर था जन्म बख्शी से, पर लेकिन सरकार का वो है तो मैं करूँगा। एक उनके पास वही अपना सेल्फ बिलीफ जो बोलते हैं बहुत ज़बरदस्त था। चीफ बन के वो CDS बने, पहले CDS इंडियन आर्मी के, और CDS बन के जो उन्होंने जो CDS का जो सेक्रेटरीट जो बनाया, मैं कहता हूँ आज हिंदुस्तान को CDS मिला तो जनरल बिपिन रावत की वजह से मिला, उनकी पर्सनालिटी की वजह से मिला, क्योंकि वो एक ऐसे 360 डिग्री आदमी थे कि हर काम में पुश करते थे। चाहे वो मंत्री जी से बात करनी हो, चाहे नीचे वालों के साथ हो, हर को पुश करते थे। क्योंकि बहुत चीज़ों में उनकी बुराइयां भी हुई, बहुत लोगों ने कहा यार ऐसे क्यों कर रहे हैं रावत साहब, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। तो जब मैं उनसे बोलता था तो कहते यार ठीक है,